کے خلاف جہاد کرتے ہو. یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل یہ ساری اپوزیشن, ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے لے کے پھر رہے ہیں. ساری قوم کے سامنے 15-20 کروڑ ہمارے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیچ دو. یہ ساری قوم کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کیسے گرائیں گے. نمبر تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ کیسے گرائیں گے؟ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کے ضمیر کو خریدو. 15-20 کروڑ کی تھیلیاں لے کے پھر رہے ہیں. اب میں نوجوانوں آپ کو بتاؤں, میرا اتنا ٹائم گزرا ہے مغرب میں, برطانیہ میں یونیورسٹی بھی گیا, کرکٹ بھی کھیلتا تھا. جو ہم نے جمہوریت لی وہ برطانیہ سے لی. برطانیہ کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی کو پیسہ دے کے اس کا ضمیر خریدے گا, کسی ایم این اے کا, ایم پی اے کا. تصور بھی نہیں ہے. وہ قوم اگر ان کو یہ شک بھی پڑ جائے کہ کسی پولیٹیشین نے اپنا ضمیر بیچا ہے, وہ سارے معاشرے میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا, کیونکہ وہ امر بالمعروف پہ چل رہے ہیں. ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھو کہ ان چوروں نے یہاں اس ملک میں 35 سال حکومت کر کے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی ہے. کہیں دنیا کے مہذب معاشرے میں کون سا پولیٹیشین اپنا ضمیر بیچتا ہے پیسے لے کے؟ اس کو تو صرف یہ نہ ہو کہ معاشرے میں شکل نہ دکھا سکے, اس کو تو جیل میں ڈالیں. سینٹ کا الیکشن ہوا, یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ایک تحریک انصاف کے ممبر کو پیسے دیتا ہوا, اس کی ویڈیو آ گئی. یہ ویڈیو اگر میں جو جانتا ہوں کسی بھی مغربی جمہوریت میں آتی, وہ سب جیل میں ہوتے اور اس کو سزا ملی ہوتی. تو یہ میرا نوجوانوں, ہمیں اللہ کی اس جو حکم ہے اس آیت پہ ہم سب کو چلنا چاہیے. میں جو ڈیگ چوک پہ لوگ بلا رہا ہوں ایک دن پہلے عدم اعتماد سے, میں اپنی قوم کو صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ ان کو بتانے کے لیے, یہ جو ڈاکو 3 اکٹھے ہوئے ہیں, 3 اسٹوجز, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قوم زندہ ہے, ہماری قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہے. ہم اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے اس معاشرے سے. نوجوانوں, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کرپشن میں اب جو شہباز شریف ہے, اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں 4.25 ارب روپیہ نکلا ہے. 4.25 ارب روپیہ کا مطلب 375 کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے, مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے. 16 ارب روپیہ, 1600 کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے. یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا, اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگے ہیں, وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں. وہاں کسی کی, اس سیاستدان کی جرت نہ ہوتی, کسی پبلک میں جاتا, اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی. یہاں جناب وہ اپنی نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا ہے, اسمبلی میں جا کے ایک اچھا, جب نیب کی عدالت میں جانا ہوتا ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے, جب اسمبلی میں تقریر شروع کرتا ختم ہی نہیں کرتا.
कमर ठीक होती है वहां। जब अदालत में जाना होता है लंबी लंबी डेट्स लेता है। तो नौजवानों मेरी बात सुन लें, कभी भी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जिधर जुल्म हो। कभी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जब तक जो उसने हुक्म दिया कौम को कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। जब आप देख रहे हैं कि माशरे में बुराई ऊपर आ रही है, आप सबके ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि उसके खिलाफ जहाद लड़ो। तो ये जो इस वक्त ये सारे 3 डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर, और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं। हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के जमीर खरीदने की 20-20 करोड़ रुपए से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं अभी तक मेरे एमएनएज ने मुझे सब ने बताया है कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं, मुझे आके बता देते हैं, सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनका इनके डाकुओं सिंडिकेट का, इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं। मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो, पैसे दे रहे हैं रख लो, 20 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो। कोई यतीम खाना खोल देना, कोई लंगर खाना खोल देना, कोई गरीबों की मदद कर देना, कोई स्कूल खोल देना, क्योंकि ये हराम का पैसा है, ले लो इनसे। लेकिन कभी अपना जमीर ना बेचना, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। जो भी अपना जमीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता। मैं आखिर में दीर के लोगों, जिस तरह का आज आपने शानदार इस्तकबाल किया है, दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो आपने शऊर दिया है, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह का आप में शऊर है। और इंशाअल्लाह ये जब अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम इत्तेमाद का, आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूं। पाकिस्तान का क़याम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हुआ और ये एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है। गैर के आगे झुकने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, खुददार कौम ही इज्जतदार कौम होती है। हमारा सियासी विजन और मंशूर मदीना जैसी फलाही रियासत पर मबनी है। 30 साल से मुल्क पर हुकूमत करने वाले आज इकट्ठे हो गए हैं। हम कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे, आज़ाद खारजा पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। मुल्क की सालमियत के लिए मजबूत फ़ौज का होना ज़रूरी है। अपोजिशन ने अदम एतमाद करके एक दिन में 3 विकटें गिराने का मौका फराहम किया है, जिसमें हम कामयाब होंगे। अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हमने मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। मुल्क लूटने वाले को किसी सूरत NRO नहीं देंगे। खुददारी, इंसानियत और इंसाफ के मंशूर पर अमल पैरा हैं। सीरत नबी से आगाही के लिए जामे प्रोग्राम शुरू करेंगे और रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान लोअर दीर तेमिरगराह में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। वफाक वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब की चौधरी बरादरान की रहाइश गाह आमद। वफाक वज़ीर मोनस इलाही ने उनका इस्तकबाल किया। आपको आगाह कर रहे हैं एक अहम मुलाकात के हवाले से। वफाक वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब चौधरी बरादरान की रहाइश गाह पर पहुँचे हैं। वफाक वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही ने उनका इस्तकबाल किया। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनकी मुलाकात का सिलसिला इस वक्त
वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात इस वक्त जारी है। इस अहम मुलाकात के अहवाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अहमियत की हामिल ये मुलाकात, जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब चौधरी बरादरान की रहायशगाह पर पहुँचे हैं और रहायशगाह पहुँचने पर वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही ने दोनों वज़रा का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और फर्रुख हबीब की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात जारी है। सियासी तंजनिकार जो हैं वो इस अहमियत की हामिल मुलाकात के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के तनाजुर में ये मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल है। और अगर बात की जाए तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो वज़ीर आज़म इमरान खान और पूरी काबीना जो है वो मुतमिन और पुरएतमाद हैं। उनका कहना है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, अब अपोजिशन की ड्यूटी है कि वो अरकान जो है वो पूरे करें। इस्लामाबाद में इस अहम मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब चौधरी बरादरान की रहायशगाह पर पहुंचे हैं, जहां पर उनसे मुलाकात का सिलसिला